تعلیمی بورڈ فیصلاباد نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 1,73,939 امیدواروں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا۔ 1,37,948 طلبہ کامیاب ہو گئے۔ ڈویژن بھر میں کامیابی کا مجموعی تناسب 79.63% رہا۔ سائنس گروپ سے 1,38,290 طلباء نے امتحان دیا۔ 1,13,317 کامیاب قرار پائے۔ کامیابی کا تناسب 81.94% رہا۔ جنرل گروپ میں 34,949 امیدواروں نے امتحانات دیے۔ 24,631 طلباء کامیاب ٹھہرے۔ کامیابی کا تناسب 17.48% رہا۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے زیر اہتمام پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب۔ کمشنر اور چیئرپرسن بورڈ مریم خان، سیکرٹری بورڈ حبیب الرحمان کی شرکت۔ ڈائریکٹر سیکنڈری ایجوکیشن علی احمد سیان، چیف ایجوکیشن راؤ عبدالکریم بھی شریک ہوئے۔ میٹرک میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں میڈلز اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ فیصل آباد سے میٹرک امتحانات میں 1,0945 امیدواروں نے شرکت کی۔ ضلع بھر سے 76,888 طلباء کامیاب ہوئے۔ جنگ سے 25,551 طلباء نے جماعت دہم کا امتحان دیا۔ 23,142 طلباء کامیاب جبکہ 2,409 فیل قرار پائے۔ چنیوٹ سے 10,553 طلباء نے 10ویں کے امتحان میں حصہ لیا۔ 9,567 طلباء کامیاب ٹھہرے جبکہ 990 کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ توبہ ٹیکنگ سے 23,060 طلباء نے میٹرک کا امتحان دیا۔ 19,683 طلباء امتحان میں کامیاب قرار پائے۔ 3,300 تعلیمی میدان میں چنیوٹ کے طلباء نے ریجن بھر میں بازی ماری۔ فیصل آباد جنگ اور توبہ ڈکشن کے طلباء کو پچھاڑ دیا۔ میٹرک امتحانات میں چنیوٹ میں کامیابی کا تناسب ڈویژن میں سب سے زیادہ 90.61% رہا۔ جنگ 90.58% کے تناسب کے ساتھ دوسرے نمبر پر، توبہ ڈکشن کے طلباء 85.04% کے تناسب کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ ڈویژن میں فیصل آباد تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے رہا۔ کامیابی کا تناسب 76.17% رہا۔ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں کی طالبات چھا گئیں۔ لڑکوں نے سائنس گروپ میں میدان مارا تو جنرل گروپ میں طالبات نے کامیابی سمیٹ لی۔ جنرل گروپ کی پہلی تینوں پوزیشنز لڑکیوں نے اپنے نام کر لیں۔ میٹرک کے امتحانات لالین کے سرکاری اسکول ٹیچر والدین کے بیٹے کی بڑی کامیابی۔ بلاول شیر نے جنرل گروپ میں 1,084 نمبر لے کر دوسرے پوزیشن حاصل کر لی۔ بلاول شیر نے پرائیویٹ حیثیت میں امتحانات دیے۔ یہ سیکنڈ پوزیشن ہے، سیکنڈ پوزیشن پہ 2 ہیں، فیصل ول امان اللہ۔ جنرل گروپ بوائز سیکنڈ پوزیشن پہ 2 بچے ہیں۔ ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، جستجو جو کرے وہ چھوئے آسماں۔ جنگ میں بھٹا مستور کے بیٹے نے باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ امان اللہ کے بیٹے فیصل نے جنرل گروپ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ جنگ کے سرکاری اسکولوں کی انتہائی مایوس کن کارکردگی۔ ضلع کے 19 اسکولوں میں فیل طلباء کی شرح 30 سے 58% تک رہی۔ بیشتر کا رزلٹ 70% سے کم رہا۔ کوٹ خیرہ، 16 گگ، کوٹ عیسیٰ شاہ، گڑھ مہاراجہ اور شاہ جیونا کے اسکولوں کی کارکردگی بدترین۔ والدین اور شہریوں کا اظہار تشویش۔ مون سون بارشوں کے چوتھے اسپیل کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ فیصل آباد، جنگ اور چنیوٹ میں وقفے سے بارش۔ توبہ ٹیکنگ میں بادلوں کا راج، ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ جنگ میں دریا چناب کی بپری موجیں کناروں سے باہر نکل آئیں۔ موضع مگھیانہ کے زرعی رقبے جزوی طور پر زیر آب آ گئے۔ سیلابی پانی چک کچا، مگھیانہ، خوجان محمد، بستی ملاح کے علاقوں میں داخل ہونے لگا۔ ادھر سیلابی پانی کا بڑا ریلا ہیڈ قادر سے تریمو بیراج کی جانب رواں دواں۔ جنگ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، میونسپل کمیٹی نے
6 डिस्पोजल स्टेशन पर फिर से जनरेटर्स लगा दिए। 14 में से 9 डिस्पोजल स्टेशन पर जनरेटर्स की तनसीब मुकम्मल। टिब्बा सुल्तान, लखीनऊ समेत फारुखाबाद से टिला टाउन में भी जनरेटर नस्ब कर दिए गए। अहम डिस्पोजल स्टेशन पर बिजली के दोहरे कनेक्शंस भी बहाल कर दिए गए। चिन्योट के मुकाम पर दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब 1,05,000 क्यूसेक का बड़ा रेला चिन्योट से गुजर रहा है। सैलाबी रेले का रुख जंग के मुजाफाती इलाके की तरफ दरियाई पट्टी से आबादियों को पीछे हटा लिया गया। मौजा सहमल के में दरियाई कटाव से बचाव के लिए इकदाम, रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट, अमला ड्यूटी पर मौजूद। दरिया चनाब भवाना के मकाम पर बिखर गया। दरिया से इस वक्त 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी का रैला गुजर रहा है। पानी किनारों से बाहर निकलकर गांव में दाखिल हो गया। इंतजामिया मुतहरिक, अहले दी को फौरी गांव छोड़ने की वार्निंग। फ्लड रिलीफ, रेस्क्यू रिलीफ कैंप, मेडिकल और लाइव स्टॉक कैंप भी कायम कर दिया गया। चिन्योट में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। शहर में 97 मिलीमीटर बारिश से बड़ी शाहराहें भी ज़ेर आब आ गईं। जुमरा रोड, फैसलाबाद रोड, जंग और सरगोदा रोड पानी पानी हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, दुकानों के सामने पानी जमा होने पर से कारोबार ठप होकर रह गए। निकासी आप के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला और मशीनरी मुतहरिक। भवाना में 83 मिलीमीटर, लालिया में 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चिन्योट शहर और गिरदनवाह में रात से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बाद शहर के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। TMA चौक, फर्नीचर मार्केट, थाना सिटी रोड, चिन्योटी रोड, गढ़ा मोहल्ला में हर तरफ पानी ही पानी। शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के शाहराहों पर भी पानी जमा हो गया। इमरजेंसी और OPD वार्ड्स के बाहर भी पानी ही पानी। मरीज और लवाहिकीनों के लिए अस्पताल दाखिला मुहाल हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया ने निकासी का काम तेज करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद इंतजामिया की अदम तवज्जो या मामला कुछ और। मुल्क के तीसरे बड़े सनती शहर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बद से बदतर होने लगा। करोड़ों की गाड़ियां, खटारा, आए रोज हादसात मामूल। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड की तामीर और मरम्मत ख्वाब बन गई। मिल्लत ता हाजियाबाद चौक सड़क पर घड़े ही घड़े। शेखुपुरा रोड पर रोजाना 2000 से ज्यादा बसों की आमदोरफ्त। शहर का अहम तरीन रोड 5 साल से तबाहाल। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी मुंह मोड़ लिया। पैच वर्क तक न किया गया। आम शहरियों और कमर्शियल सेक्टर की गाड़ियों को सख्त परेशानी का सामना। फैसलाबाद में बड़े बड़े घड़े शेखुपुरा रोड की पहचान बन गए। निशाताबाद, सियासत, फटा बाजार से शुगर मोड़ तक 1.5 किलोमीटर में 150 घड़े। मानावाला से निशाताबाद पुल की दोनों अतराफ 38 घड़े शहरियों के लिए खतरा। 100 फुट एरिया में छोटे बड़े 40 खड़े व्हीकल्स तबाह करने लगे। शेखुपुरा रोड की जुमरा रोड क्रॉसिंग पर 20 खड़े दर्दे सर बन गए। शहरियों के लिए खतरनाक घड़ों से बचना मौजूदा दिखाई देने लगा। शेखपुरा रोड के चौक जमीलाबाद से निशाताबाद तक सफर इम्तिहान बन गया। अहम तरीन रोड पर सीवरेज का पानी खड़ा होना मामूल बन गया। 7 मुकामात पर 2 तरफा पैच वर्क होना बाकी। शगाफ नुमा खड्डे मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ाने लगे। रेलवे फाटकों की चौड़ाई का मंसूबा ठप होकर रह गया। फैसलाबाद शहर के अंदरून में वाकई फाटक तंग, चौड़ाई 40 फुट से भी कम। तारिकाबाद, समनाबाद और निगहबानपुरा फाटक से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरी परेशान। जिले इंतजामिया को डोबा टेक्सिंग और कमालिए का ख्याल आ गया। बाजारों की खूबसूरती पर 16 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगा। बाजारों में टफ टायर्स, एक जैसे बोर्ड्स लगेंगे। बिजली की तारें अंडरग्राउंड बिछाई जाएंगी। डोबा टेक्सिंग के सदर और कमेटी बाजार की तहसीन और आराइश होगी। नए बजट के मंडियों पर मनफी असरात मुरतब होने लगे। एशिया की सबसे बड़ी यौन मार्केट में मंदी का रुझान। फैसलाबाद में 15 से 20% मंदी का रुझान रिकॉर्ड। ताजिर कहते हैं
मकामी कपास ब्लैक में फरोख्त हो रही है। AFS से माल डंपिंग के भी मनफी नताइज आ रहे हैं। बिजली, पेट्रोल और गैस समेत हर चीज महंगी। फैसलाबाद के ताजिर कारोबारी सूरत हाल पर शदीद परेशान, कारोबार छोड़ने लगे। मिंटकुमरी बाजार से 2 माह में 7 से 8 दुकानदारों ने दुकानें बंद करके कारोबार छोड़ दिया। सदर मिंटकुमरी बाजार ताहिर जमील कहते हैं कि दुकानों का किराया अदा करना भी मुश्किल हो चुका। गंदम के बाद मैदे और सूजी की कीमतों में भी कमी, लेकिन जड़ावाला में बेकरी आइटम्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तहसील इंतजामिया बेकरी आइटम्स की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम, शहरी रिलीफ से महरूम होकर रह गए। चक 235 रेबे नया मवाना समुद्री रोड के मकीनों का जिला कौंसल चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन का पुलिस पर कत्ल केस की तफ्तीश दुरुस्त न करने का इल्जाम। RPO और CPO से दाद रसी की अपील कर दी। जिला कौंसल चौक बंद होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फैसलाबाद के चक 68 में 60 बेड पर मुश्तमिल तहसील अस्पताल बनाने के मामले में पेशरफ। मुताल्लिका इलाके में अस्पताल बन भी सकता है या नहीं, महकमे हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने रिपोर्ट मांग ली। और फैसलाबाद एलिया केयर होम सेंटर की जानिब से मैंगो पार्टी का एहतमाम। खुसूसी बच्चों के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाई गई। फलों के बादशाह आम के मुख्तलिफ डिशेस भी बनाई गई। मुख्तलिफ तराकीब से आम की चाट, पैनकेक और मैंगो शेक बनाया गया।